Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos on the topic of rational numbers and mathematics for students studying in Class 8 under the CBSE board. These videos have been carefully curated to cover the entire CERT syllabus, ensuring that students receive a comprehensive understanding of this fundamental concept. Rational numbers are an essential part of the number system and play a significant role in various mathematical operations. This video series aims to simplify the understanding of rational numbers by breaking down complex concepts into easily digestible explanations. Students can now grasp the fundamentals of rational numbers with ease and confidence. The series covers a wide range of topics related to rational numbers, such as introduction to rational numbers, representation on the number line, operations on rational numbers, and their applications in real-life situations. Each video provides step-by-step explanations and examples to help students strengthen their problem-solving skills. With the help of these videos, students can now enhance their knowledge and achieve a deeper understanding of rational numbers. The engaging visual aids and clear explanations provided in this series will help students excel in their examinations and build a strong foundation in mathematics. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to providing top-quality educational resources, and this series on rational numbers is no exception. Students can access these videos at their convenience, making learning a fun and interactive experience. Don't miss out on this excellent opportunity to strengthen your mathematical skills and excel in your examinations. Okay, so people, if we have two rational numbers and we have to multiply them, ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर्स है, लेट्स से 2 into 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 2 into -3, इसका आंसर कितना हो जाएगा -6. सो अगर ये दो रैशनल नंबर्स है, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ थर्ड नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन एज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो 15/4 है एक रैशनल नंबर इन द फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है ये, p/q. ठीक है, इंटू 3/7 है. तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या आ जाएगा, देखो 45/28. What do we conclude? Multiplication of two rational numbers is going to give you a rational number. ठीक है, multiplication. So multiplication of two rational numbers is also a rational number. This property is known as closure property of multiplication. ये हो जाएगा आपका closure property. ये हो गया था यार. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ था नहीं ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके. सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे अपन. यहां पे 17/8 है डिवाइडेड बाय 51/4, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 17/8 इंटू 4/51. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 17 3 जा 51, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 1/6. क्या आया, ये एक रैशनल नंबर आया. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रैशनल नंबर. कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उल्टम पुल्टम करेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी 17/8 इंटू 4/51. सो व्हाट डू वी गेट यहाँ पे 68. इसको अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1/6. ठीक है, फाइंड द कोशेंट ऑफ, आपको यहाँ पे कोशेंट निकालना है. ठीक है, तो डिविजन करना है बेसिकली. क्या करेंगे आप, -16/35 डिवाइडेड बाई 15/14 है, तो -16/35 इंटू 14/15 हो जाएगा, है ना. -16 अभी इसका देखो कितना आएगा, 16 इंटू, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, और इधर हो गया 16, 4 6 + 6 12, और ये हो गया 224. -224 अपॉन यहाँ पे 35 इंटू 15 है, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 16 17, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 7 + 5 12, 3 + 1 4, 1 5, तो ये आ गया कितना 525. यही आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली अ रैशनल नंबर. तो यहाँ पे हम -16/35 इंटू 14/15 कर रहे हैं. सो व्हाट डू वी गेट, -224/525. तो इधर किया आपने तो -32/75 आ गया. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके,
चलिए भाई साहब फाइंड द कोशेंट ऑफ, इसको करना है तो कैसे करेंगे इसको, देखो -12/7 डिवाइडेड बाई -16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12/7 इंटू -1/16। वेरी गुड। तो अभी आप देखो इसको क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बोलो 3/28। दिस वुड बी 3/28। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? सो इधर आ गया, लेट्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया आपका 3/28। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। फाइंड द कोशेंट ऑफ -9 डिवाइडेड बाई 18/-5। तो यहाँ पे -9 है बच्चा पार्टी, डिवाइडेड बाई 18/-5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, पूरा फ्रैक्शन ही भाई साहब आपका नेगेटिव हो जाएगा, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर हो में हो। अगर नेगेटिव होता है तो पूरा फ्रैक्शन ही आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस विल बी -9 इंटू क्या हो जाएगा बोलो -5/18। ये जो डिवीजन है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो फ्रैक्शन है ये किस में चेंज हो जाएगा, उल्टम पुल्टम, मतलब इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बोलो 5/2। ठीक है, 5/2 प्लस 5/2। क्लियर है? दिस वुड बी योर कोशेंट। कोशेंट मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 45/18, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 5/2, सेम आंसर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। भाई साहब ये 5 कैंसिल हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कंसीडर डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे 15/4 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 15/4 इंटू 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कुछ भी कट्टम कुट्टम नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 45/28। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर पीपलम, 15 3 ज़ा, ये हो गया आपका 45/28। सो डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है यहाँ पे? होती है भाई साहब। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या, जो आपका एडिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, ओके। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रही है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी लागू होती है। ठीक है, ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ 2 रैशनल नंबर्स स्टेट्स दैट डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कोई भी 2 नंबर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर पीपल, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट सी डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय 1। ठीक है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जैसे 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या आएगा आंसर 4। सो डिवीजन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 1 विल गिव द रैशनल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा आंसर। तो जैसे 15/4 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाई 1/1, मतलब 15/4 इंटू 1/1 है कि नहीं। सो इंटू 1/1, तो आपका कितना हो जाएगा 15/4। सो फॉर एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जो इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, a/b। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, वही रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एनी रैशनल नंबर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब देखो इनमें से, जैसे समझ लो अगर a/b इंटू c/d है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है a/b इंटू e/f है। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a/b को कॉमन निकालेंगे। सो दिस विल बी a/b, और अंदर क्या बचा c/d प्लस e/f। ठीक है, a/b c/d प्लस e/f।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको चाहे तो लिख लीजिए, ये आपका हो गया भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए बाई पी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बताइए। यहाँ पे 7/5 इधर भी दिख रहा है आपको, 7/5 आपको इधर भी दिख रहा है, तो व्हाट विल यू डू, ये हो जाएगा आपका 7/5 और यहाँ पे कितना आया -3/12 प्लस 5/12। मेकिंग सेंस पीपल, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 7/5 इधर कितना हो जाएगा बोलो, 5 - 3 दैट इज 2/12, 2/12 मतलब 1/6, सो दैट विल बी 7/5 into 1/6, 7 1 जा 7, 5 6 जा 30। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, तो आपने 7/5 को बाहर निकाला, इधर हो गया -3/12, तो इधर हो गया आपका 2/12, सो इसका कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 7/30, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगना है, तो 2/5, तो आप देखो यहाँ पे 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 1/14 इंटू 2/5, ऐसा है आपका, ठीक है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे यूज करना है, ओके। सो 2/5 इंटू -3/7 माइनस यहाँ पे क्या लिख, तो इसको अपन ने इधर लिया, देखो पहले हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक 2/5 है और यहाँ पे एक 2/5 है, तो हमने इन दोनों को क्लोज लाया, ठीक है। देखो ये क्या था, ये माइनस दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को हमने क्लोज लाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -1/6 इंटू 3/2। अभी इन दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बोलो, 2/5 को अपन ने कॉमन निकाला और दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो 2/5 को जैसे ही आप कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, -3/7 प्लस 1/14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस, इसको अपन ने वैसे ही रहने दिया, ठीक है, वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/5 और इधर कितना हो गया 14, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -6 और ये हो गया कितना +1, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, -6 हो गया और ये हो गया 1, ठीक है। -1/6 इंटू 3/2, ठीक है, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 2/5 इंटू इधर कितना हुआ बोलो -6 + 1, तो ये हो गया -5/14 -1/6 इंटू 3/2, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2। तो अभी देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -10 नहीं हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कितना हो गया कैंसलम, तो ये आ गया आपका कितना -1/7, और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो -1/4, ठीक है, -1/7 सॉरी, हाँ -1/7 और -1/4, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 28, 7 इंटू 4 होता है तो ये -4, 4 इंटू 7 होता है तो ये 7, -4 -7 दैट इज -11/28, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस तरह से आपको भाई साहब इसको करना है, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो 2/5 -3/7 1/14 इंटू 2/5, और इसको आपने कर लिया, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया कितना 1/4 कम्यूटेटिविटी, ठीक है, क्लियर है। यूजिंग कम्यूटेटिविटी, तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, इसको 2/5 को बाहर निकाला और यहाँ पे, तो ये क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो पहले आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अगर समझ लो a + b + c है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a + c + b, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन c + b + a ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही किया है, देखो हमने, ये a था, ये b था, सॉरी ये a था, ये b था, ये c था, इन दोनों को पहले कर दिया और इसको अलग रखा, ठीक है। तो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये 2/5 और ये 2/5 को बाहर निकाल रहे हैं, तो 2/5 को बाहर निकाला, यहाँ कितना बचा बोलो -3/7 + 1/14 -1/4, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आपका हो गया खत्म करके -1/7 और -1/4, -1/7 -1/4, तो ये हो गया आपका -11/28, क्लियर है बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर, ओके। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2/3 और 3/5 है,
आपको दिख रहा है ये एक रैशनल नंबर, ठीक है, और भाई साहब ये एक रैशनल नंबर और ये एक रैशनल नंबर। इन दोनों रैशनल नंबर्स में देखो 3/5 कॉमन है, ठीक है, तो इसको तुम इसके साथ क्लोज लाओ, तो यहाँ पे -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप बताइए? कम्यूटेटिव। देखो भाई साहब ये a है प्लस b है, ठीक है, ये प्लस b है और ये हो गया लेट्स से -c, तो अपन ने क्या लिखा इसको a - c प्लस b, इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कम्यूटेटिविटी को यूज करते हुए आपने ऐसा लिखा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इसमें से इसको और इसको कॉमन निकालोगे, तो 3/5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा -2/3 और ये वाला -1/6, तो ये 2/3 और ये 1/6, ठीक है। कैंसिल कैसे होगा? अरे नहीं, वैसे कैंसिल मत करने जाओ, होता है कैंसिल, लेकिन तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करते इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम वैसे ही किए तो तुमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया ना, तो आपके जितने भी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़े हैं आपने, कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये सब आपको यूज करना है। हाँ आप सही बोल रहे हो, इधर कैंसिल कर दो तो -2/5 हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो हमने 3/5 को बाहर निकाला, बचेगा कितना -2/, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सॉल्व करना है, ऐसे शॉर्टकट मतलब है वही तरीका, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए करना है इसको, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, प्लस आपका आंसर सही आएगा तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो 3/5, अभी इसको संभालो, देखो यहाँ पे हो गया आपका 3/5, अंदर कितना बचेगा, देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 इंटू 2 जा, तो इसको 2 से करो तो ये हो गया -4, 6 इंटू 1 या 1 से, तो ये हो गया -1 प्लस 5/2, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 3/5 इंटू ये हो गया -5/6 प्लस 5/2। अब कर लो भाई साहब, अभी आपके पास छूट है, तो अभी आपने इसको कैंसिल किया और ये 2, तो ये गया कितना आपका -1/2 है ना, -1/2 प्लस 5/2, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 5, तो ये कितना हो गया बोलो 4/2, दैट्स गोइंग टू बी 2, ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए करना है, आप वैसे नहीं कर सकते जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है, करेंगे भी तो आंसर आपका यही आएगा, लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए करना है। जो भी प्रॉपर्टीज आपने अभी तक पढ़ी हुई है, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और आपका भाई साहब आइडेंटिटी, ये सारी जितने भी पढ़े हैं इनको यूज करते हुए करना है, ठीक है, ओके। नहीं ऐसे में ही करना है, देखो ना दिया हुआ है ना यहाँ पे अप्रोप्रिएट, आपको कोई ऐसा सवाल थोड़ी, आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी ना कोई ऐसा सवाल देगा कटम कुटम करके कर लो, आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना पड़ेगा। ये तो अरे मेरा बात सुनो, आप जिस सवाल को पूछ रहे हो वो गलत है, आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना पड़ेगा, रैशनल नंबर के सवाल आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना पड़ेगा। लेट्स क्लोज इट हियर, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है, वरना क्या ये आसान तरीके से करोगे तो फिर क्या मतलब बनता ही नहीं है ना वो, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज यूज करके नहीं मुझे बोला रहेगा, अगर आप ऐसे करने जाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यू गेटिंग द आंसर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3/, इसको हमने यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कौन सा यूज किया, देखो आपने भाई साहब प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकाला, ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यहाँ पे भाई साहब कम्यूटेटिविटी होगा, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया दिस विल बी 3 इंटू सेम आंसर आ गया, देखो आपका 4/2, दैट विल बी गिविंग यू 2, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रैशनल नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा -4/5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -4/5, तो आपका कितना आ गया वही सेम आंसर, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू a, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी, a इंटू 1 इंटू 1 इंटू ए, when we multiply rational number with 1 we get the rational number as the product, ठीक है, तो रैशनल नंबर ही आ जाएगा आपका प्रोडक्ट,
तो ये आपका होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब आप अगर कोई भी नंबर है a by b into 1, तो योर रिजल्ट विल बी a by b, दैट विल बी इक्वल टू 1 into a by b। इसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2। कोई भी नंबर उठा लो, देखो 1 और क्या हो जाएगा 0, -1, -2, -3, और क्या लिख सकते हो 0.5, यहाँ पे लिख सकते हो -1/2, यहाँ पे लिख सकते हो -2/3, ये सब आपके 2 से लेस हैं, ठीक है। देयर आर मेनी रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2। तो 1/3, 1/4, 1/2, -1/2, -1/5, ये सारे तमाम जितने भी आपको रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं जो लेस देन 2 होंगे, ठीक है। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/2। अभी इसको कैसे करना है देखो, ठीक है। इसको आपको ऐसे करना है, देखो यहाँ पे क्या है, n आपका कितना है 10, ठीक है। तो n, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, n+1 अपॉन n+1 से दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो n+1 कितना हो गया 10+1। डिफरेंस कंपेयर करके बहुत लंबा चलेगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। n+1 10। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं यहाँ पे, तो कितना आ गया तुम्हारा 11/11, ठीक है। 10 रैशनल नंबर्स बोला है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। अभी दोनों फ्रैक्शन को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखो -2/5 इंटू 11/11 कितना हो जाएगा बोलो, -22/55। 1/2 है इंटू 11/11 कितना आ गया बोलो यहाँ पे 55/11, ठीक है, क्लियर है। अभी भाई साहब तमाम, तो यहाँ पे एक लिखो -22/55 और यहाँ पे लिख लो भाई साहब 11/55, ठीक है। -22 के -22 और 11 के बीच में -21/55 आएगा, -20/55 आएगा, -19/55 आएगा, -18/55 आएगा, ठीक है, -17/55 आएगा, -16/55 आएगा, -15/55 आएगा, -14/55, देन यू हैव -13/55, ठीक है, -12/55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। जरूरी नहीं कि जो मैंने आंसर लिखा है वही इतना ही आएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो 11/55 है, एक मिनट रुको ना यार तुम, ठीक है। 11/55, तो इसके पहले 10/55, ठीक है, 9/55, ये जब भी आ जाएंगे भाई साहब आपके 8/55, ऐसे तमाम आंसर्स आ सकते हैं। हाँ क्या कौन सा, हाँ अरे यार मैंने 11, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 11 22 होगा ना, सब गड़बड़ हो गया, ओ आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई साहब, n+1 और n+1 दैट विल बी हाउ मच 11/11, तो -2/5 इंटू 11/11, तो दैट विल बी -22/55, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है यार। चलिए फिर कॉमन एलसीएम ही लेते हैं, चलिए 5 2 इनका, हम यहाँ पे इसको कॉमन एलसीएम से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्टिंग -2/5 1/2 हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है। सो सेम डिनोमिनेटर्स मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, जो कि कितना है 10 है, ठीक है। सो -2/5 को अगर अपने को 10 करना है तो 5 इंटू 2 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका -4/10। 1/2 को अगर आपको 10 करना है 2 इंटू 5 और 1 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 5/10, ठीक है। अभी आराम से डाल दीजिए, देखो यहाँ पे -4/10 है और यहाँ पे कितना है 5/10, ठीक है। अभी इनके बीच में आपको 10 नंबर्स ठूसने हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, -3/10, -2/10, -1/10, 0 लिख सकते हैं भाई साहब, ये भी बीच में ही आ रहा है ना, ठीक है। 0 भी तो एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, गिनो जरा कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नंबर्स हो रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं बोलो, 4.5/10 लिख सकते हो, ये भी तो 4 और 5 के बीच में होगा। और क्या लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का एक नंबर, इन दोनों के बीच का एक नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, अभी देखो 2/5 को अपन ने क्या किया, पहले तो -4/10 में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हुए किससे कन्वर्ट किया, ठीक है,
अभी ये जो आया इसका अपन को देखना पड़ेगा, -4 और 5 आया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स इज नॉट मोर देन 10। तो अगर आप देखोगे -4 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 5 माइनस -4 दैट इज 9, ठीक है। लेकिन आपको 10 नंबर्स चूसने हैं, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, -4/10 को फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके 10 नंबर्स एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, -8/20 और ये 10। देखो 2/2 एक्चुअली में क्या होता है, 1, ठीक है। 2/2 यहाँ पे क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, है ना। तो ये हो गया 8/10 और ये हो गया 10/20। ओके, तो अभी -7 इसके बीच में है, -6/20, -5, -4, -1, 1। तो ये हो गया आपके देखो नंबर्स, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, -7/20, -6/20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, तो -3/10, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, तो -1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, -1/5, -3/20, -1/10, -1/20, 0, 1/20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 1/10। ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, क्लियर है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। क्या करोगे पहले बताओ, पहले तो भाई साहब आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये 1/4 है और ये हो गया आपका 4, 4 × 1, 1 × 1, तो ये कितना हो गया भाई साहब 1/4। यहाँ पे कितना है 1/2, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये 4 आया, 2 × 2 और ये हो गया 2, तो 2/4। तो 1/4 और 2/4 के बीच में क्या क्या होगा बोलो, क्या इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से। कितना आ रहा है बोलो, 2 4 2 ज़ा 8, और इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है बोलो, 8 और 2 2 ज़ा 4। अभी भी 4 रैशनल नंबर आएंगे क्या, नहीं आएंगे, है ना। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इसको, तो वी विल मल्टीप्लाई इट एक्चुअली बाई अनदर नंबर। तो अभी पहले हम कर रहे हैं कन्वर्टिंग 1/4 हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। तो हम यहाँ पे 1/4 को 1/4 और 1/2 को 2/4। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स इज नॉट मोर देन 5। सो व्हाट विल यू डू बच्चा पार्टी, ठीक है। कन्वर्टिंग 1/4 हैविंग द सेम न्यूमरेटर्स एज द न्यूमरेटर्स इज मोर देन 5। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसको 8/8 से कर देते। देखो 1 और 2 को मुझे इतना लंबा करना है, तो 1 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8/32 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई साहब 16/32, ठीक है। तो अभी देखो देखो तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से, 6/6 से, 7/7 से, 8/8 से। 8/8 से हम यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों का अभी आ जाएगा 32, और 8 और 16 के बीच में 5 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अपन का कितना हो गया बोलो यहाँ पे, 9 10 11 12 13, क्लियर है। और भी ज़्यादा होंगे क्या, नहीं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्यों ज़्यादा में जाएंगे, हमको 5 ही चाहिए ना यहाँ पे। तो वी वाई शुड बी वेस्ट अ टाइम इन गेटिंग सम हायर नंबर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, 1 सेकेंड, हाँ। एक मिनट, जरा आप लोग SST का निकालिए।